Hello everyone, good evening at your very own favorite channel. So students, today we are going to discuss class 6 science chapter number 7. The name of the chapter is motion and measurement of distances. This is going to be very interesting chapter, super duper easy chapter and very scoring chapter. So if you wanted to score more and more marks in your science exam, especially in your annual exam, so you need to be prepared well in this chapter, because some concept might be very difficult for you, but if you basically try to, if you understand them or if you revise them twice thrice, so those concepts will be more easy to you. Okay, so apart from this, if basically this chapter is also a scoring chapter, you can basically this chapter is a mind booster as well as a score booster for you. So yes, this is going to be very interesting chapter, and especially from an examination front, the questions which may came in your exams will be very interesting, very easy peasy, because there are some schools which basically believes to give the questions from your NCERT back exercises, but there are some schools which give questions in between from the chapter. Okay, so those students who got the question from in between, so they need to prepare well. But there are the students which got the questions from NCERT back exercises, so I will not suggest them like go and start ratification of your questions, but to enhance your knowledge, they also, to enhance the knowledge, they need to be basically work hard on this chapter also. Okay, so apart from this, I will congratulate to those students who score a well marks and your good marks in their exams, and a very very congratulations to those students. And I'm not basically uh, basically I also congratulate to those students who tried to do well in their exams, but there are some students who did not do a well in their exam, and they might be panic. So don't need to be panic. See, your marks will not decide your result. It's not like that the toppers, the higher topper who got good marks in their exam will basically do something in their future. It's not mandatory. Okay, so don't think like that. You can do better, but there are some efforts which are required to do on that, to do basically to do the best. So yes, with this a good let's start. Okay, so let's start. So this chapter, what is this chapter? The chapter is motion and the measurement of distances. Before getting started to this chapter, let's try to focus on some words. Very first is motion. What is motion? Second, measurement. What is measurement? And last, what is distance? See, before reading or before, basically I always suggest you, like, first of all, do try to understand the topics, the name of the chapter, what it tries to conclude. Okay, what it tries to conclude, especially if you are reading for NCERT, the words, the language that is given in the NCERT might be typical for you, but you need to basically understand the meaning of the NCERT. Okay, so let's start. So बच्चा पार्टी, what is motion? Motion means, देखो, I will explain it. When an object changes its position with respect to the time, that would be motion for you. You will understand it in more detail. There is a whole chapter of motion. Your class 9th has a whole chapter of motion. So you will go into more detail of motion, but I will basically give you the basis of motion. Suppose यहाँ पे देखो कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर ए. सो हियर दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, मान लो कल की बात है, कल रात 10 बजे मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाया एंड आई हैव पुट इट इन दी अलमीरा. ठीक है, अलमारी में मैंने रख दिया चार्जर लगा के, एंड वो चार्ज हो रहा है. ठीक है, तो वहाँ से मैंने सुबह आके देखा मेरा फ़ोन वहीं है. वो वहाँ से उठ के चेयर पे नहीं आया, कमरे से बाहर नहीं आया. ठीक है, मेरा फ़ोन वहीं है. ठीक है ना, यानी कि आई हैव सेड लाइक उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया. ठीक है, लेकिन वहीं मैंने एज अ टीचर, ओके लेट्स सपोज आई एम अ टीचर, मैं आपसे मैं टीचर बन गई. ठीक है, स्कूल में पढ़ा रही हूँ, मैंने पनिशमेंट दी बच्चे को. ओके, ठीक है, तो अभी हमने देखा कि कोई एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, एक मिनट, एक ऑब्जेक्ट था
कि मतलब मान लो आपने फ़ोन को छोड़ो, आपने अपनी पढ़ाई बुक्स रख दी अपनी स्टडी टेबल पे, आप एक रात पढ़ाई करके सोए, आपने अपनी बुक्स स्टडी टेबल पे रख दी, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि वो बुक्स अपने आप उठ के स्टडी टेबल से स्टडी चेयर पर बैठ गई हो आके? ऐसा तो हुआ नहीं होगा ना, है ना, नहीं हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो आप नेगेटिव ले जाते हो उसे, नेगेटिव ले जाते हो इन द सेंस, मैं बोलूँगी नहीं पर आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है। वहीं अगर आपने देखा हो, जैसे मान लो मैंने किसी को पनिशमेंट दिया, मैंने ए पर्सन है कोई, मैंने उसे पनिशमेंट दी, यू हैव टू स्टैंड हियर फॉर एन आवर, तो आप देखोगे कि वो लगा है वो एकदम स्टैचू बन के वहाँ 1 घंटे तक सीधे नहीं खड़ा रहेगा। मैंने जिस पोजीशन में उसे खड़ा करा है 15 मिनट में मैं आके देखूंगी तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, बिकॉज ही इज़ अ लिविंग पर्सन और ही इज़ अ लिविंग थिंग एंड ही कांट बेसिकली स्टैंड इन अ स्टैचू लाइक पोजिशन। तो यहाँ पे भी मैंने देखा कि अभी मैंने उसे इस पोजीशन में खड़ा करा था एंड देयर इज़ अ चेंज इन हिज पोजीशन, इन हर पोजिशन। सो बेसिकली व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द मोशन। तो मतलब उसकी पोजिशन में कुछ चेंज आया है, नॉट विदाउट मतलब विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, यानी कि 15 मिनट में उसकी पोजिशन यहाँ से यहाँ हो गई, है ना। 15 मिनट में यानी कि उसकी पोजिशन में जब आपका चेंज आया टाइम की रिस्पेक्ट में, उसे हम मोशन बोलेंगे। इन वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स आप ये समझ लो, आप कहीं जा रहे हो घूमने, तो अभी आप अपने घर से चले हो, तो आप मान लो अभी आप फरीदाबाद पे हो, आप कहीं भी हो मुझे नहीं पता, आप ले लो, लेट्स से आप एक्स प्लेस पर थे, 15 मिनट में मैंने आपसे कॉल करी, तो आप बोलोगे मैं एक्स प्लेस से थोड़ा सा और आगे आ गया, तो देयर इज़ अ चेंज इन योर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम की कुछ टाइम में तो आपकी पोजीशन चेंज हुई है, वही मोशन होगा। आई होप दैट इट इज़ क्लियर राइट नाउ। ओके, चलो अब देखो मेज़रमेंट क्या होता है। मेज़रमेंट मतलब बेसिकली क्या होता है, मेज़रमेंट होता है नापतोल। जब भी आप किसी चीज़ का नापते हो ना, व्हेन एवर यू कैलकुलेट समथिंग, ठीक है। मेज़रमेंट बेसिकली अब ऐसा नहीं है, जैसे यहाँ पे इसके आगे लिखा है मेज़रमेंट ऑफ डिस्टेंसेज, यानी कि आप डिस्टेंस को नाप रहे हो। इट्स नॉट मैंडेटरी हम नापते हैं, हम कोई भी चीज़, हम किसी चीज़ का वेट भी मेज़र कर सकते हैं, ये सब मतलब होता है एग्जैक्टली नापना, ठीक है। नाउ लास्ट है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस, व्हाट इज़ डिस्टेंस? तो देखो अगेन देयर इज़ अ डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, एक्चुअल पाथ। देयर इज़ नो नीड टू गो इन मोर डेप्थ, आई एम जस्ट गिविंग यू some basis, or I'm just giving you a definition, okay. So distance means actual path. It is an actual path covered by an object. किसी भी ऑब्जेक्ट ने टोटल पाथ कितना कवर करा है, दैट इज द डिस्टेंस, एक्चुअल। I'm using the word actual, okay. It's not mandatory to learn it, I'm just giving you the basis. I'm telling you again and again, it's not in your class, in your standard, I'm just giving you the basis, or any basically I'm just clearing your concepts, okay। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। तो यहाँ पे देखो क्या है, एक स्टोरी है। देयर वॉज अ जनरल डिस्कशन अमंग द, तो देखो यहाँ पे 2 बच्चे हैं, पहेली एंड बूझो, उनके बीच में कोई डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। अबाउट किसके बारे में डिस्कशन चल रहा है, प्ले उन जगहों के बारे में जहाँ पर वो घूम चुके हैं अपनी गर्मियों की छुट्टियों में। कोई उनकी क्लास में कुछ लोग कहाँ गए हैं, उनकी क्लास में तो अपने मतलब वो ट्रेन से, कुछ लोग अपने गांव गए हैं, कुछ लोग बस से गए हैं अपने गांव, कुछ लोग बुलक कार्ट से यानी कि बैलगाड़ी से गए हैं। 1 स्टूडेंट है ट्रैवल बाय एन एरोप्लेन, एक बच्चा है उनकी क्लास में जो कि शायद बहुत अमीर है, जो कि एरोप्लेन से गया है। एक और अनदर स्पेंड मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडेज गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप्स। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने छुट्टियाँ बिताई है अपने अंकल की बोट में बैठ के, उन्होंने मछलियों को पकड़ा है, ठीक है, ओके। बेसिकली उन्होंने फिशिंग ट्रैप्स मतलब फिश को ट्रैप करा है उन्होंने। द टीचर देन आस्क्ड देम टू, टीचर ने उनसे पूछा कि टू रीड a newspaper article that mentioned about small wheeled vehicles that moved on the soil of Mars and conducted the experiment। कहने का मतलब ये है कि उनकी क्लास में एक टीचर है, लेट्स से कोई भी टीचर है उनकी क्लास में। द टीचर देन आस्क्ड देम टू रीड न्यूज़पेपर, उनके टीचर ने उनसे कहा कि अखबार पढ़ो। अखबार में मतलब एक उस टाइम पे मतलब जहाँ, जबकि ये स्टोरी बता रही है मुझे नहीं पता, तो वो बता रही है कि मतलब इस फलाने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल निकला है, ठीक है, वो तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। दैट जिसमें क्या मेंशन है, दैट मेंशन अबाउट स्मॉल व्हील्ड व्हीकल्स, जिसमें किसके बारे में मेंशन है, व्हीकल्स के बारे में मेंशन है जिनके पहिए बहुत छोटे हैं, जो कि कहाँ मूव कर रहे हैं, मार्स की मिट्टी पे। व्हाट इज़ मार्स? मार्स इज़ आर प्लैनेट, एक प्लैनेट है, ठीक है, सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है।
और उस चीज़ पर तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है, ये चीज़ उन्होंने बोली। दीज व्हीकल्स वर टेकन बाय स्पेसक्राफ्ट ऑल वे टू द मार्स। तो ये जो व्हीकल्स हैं जो मार्स पे भी आप देख रहे हो, ये स्पेसक्राफ्ट लेके आए हैं। मीनवाइल पहली हैड बीन रीडिंग स्टोरीज अबाउट एंशिएंट इंडिया। तो इस टाइम पर जब ये टीचर कुछ बता रही हैं, ये सब बता रहे हैं, तो उस टाइम पर पहली क्या पढ़ रही थी, पहली स्टोरीज़ पढ़ रही थी एंशिएंट इंडिया के बारे में, प्राचीन इंडिया के बारे में। एंड वो जानना चाहती है कि कैसे किस तरीके से लोग ट्रैवल करा करते थे उस टाइम पे जब कुछ था नहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। आज आप इस पर्टिकुलर फलानी जगह पर जा रहे हो, दूसरी जगह पर आपको जाना है, तो आपको पैदल चलने की ज़रूरत नहीं है, बैलगाड़ी की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट गो बाय एयरप्लेन, बाय प्राइवेट जेट, बहुत सारे लोग होते हैं, बाय कार, टैक्सी, बाइक एक्सेट्रा, ट्रेन, शिप्स, बहुत कुछ है। पर पहले के टाइम पे जब ऐसा कुछ था ही नहीं, जब मोस्ट प्रोमिनेंटली व्हील डिस्कवर ही नहीं हुआ था, व्हील का आविष्कार ही नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे कैसे लोग ट्रैवल करा करते थे? दिस इज़ अ ग्रेट क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं विद द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, किस तरीके से लोग ट्रैवल करा करते थे उस टाइम पे। सो लेट्स ट्राई टू डिस्कस। ओके स्टूडेंट्स, सो लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव मैनी एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो पहले के टाइम पे लोगों के पास कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो था नहीं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई साधन तो था नहीं उनको। दे यूज्ड टू मूव ओनली फुट, तो वो मतलब बाई फुट जाते थे, यानी कि पैदल जाते थे, या फिर अपने और जो भी सामान होता था उसे अपने पीठ पर रख के वो चला करते थे। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में एनिमल्स को यूज़ करना शुरू करा गया फॉर ट्रांसपोर्टेशन। हमने देखा बहुत सालों तक बैलगाड़ियों को यानी कि ऑक्स को यूज़ करा गया टू ट्रांसफ़र और टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अपार्ट फ्रॉम दिस फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट्स वर यूज। उस टाइम पे जैसे अगर आपको लैंड से ट्रांसपोर्ट नहीं करना है तो नदियाँ तो उस टाइम पे होती थी, है ना, सीज़ तो उस टाइम पे होते थे, ओशंस तो उस टाइम पे होते थे। तो जैसे आपको बाय वाटर ट्रांसफ़र होना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो यू कैन जस्ट गो देयर बाय शिप। तो आप शिप का यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट टू ट्रांसपोर्ट थ्रू द वाटर। शिप्स का बेसिकली नो, शिप्स तो उस टाइम में डिस्कवरी नहीं हुई थी। बोट का, लकड़ी की बोट बना ली जाती थी, आप उससे ट्रैवल करते थे, ठीक है। फिर बोट्स को टू बिगेन विद बोट्स फॉर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड इन विच अ हॉलो कैविटी कुड बी मेड। तो बोट्स क्या होती थी, ये जो बोट्स होती थी किससे मिलकर बनी होती थी बेसिकली वुड से। हॉलो कैविटी का मतलब क्या है, मतलब बेसिकली आपने बोट्स की शेप तो देखी होगी ना, इस तरीके से शेप होती है बोट्स की। हॉलो कैविटी मतलब खोखली चीज़, है ना। तो अंदर से बोट कैसी होती है, अंदर से बोट थोड़ा सा खोखलापन तो होता है ना उसमें। दिस इज़ वॉट हॉलो कैविटी, ठीक है। तो मतलब बोट का यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया है। लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेज ऑफ वुड एंड मेक गिव शेप्स टू बोट्स, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब उन्होंने लकड़ी को एक बोट बनाना सीखा। दीज शेप्स imitated the shapes of animals living in the water. Recall our discussion of this streamline shape of fish. अच्छा, बोट की जो शेप है ये किसकी जैसी है, इट इज़ अ काइंड ऑफ द फिश, है ना। हम इस मतलब आपने चैप्टर 5 और 6 में एक चैप्टर है, यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिमल्स के बारे में, बॉडी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है ना। आई हैव नॉट एक्सप्लेन दिस चैप्टर बिकॉज आई नो यू हैव ऑलरेडी गिवन द एग्ज़ाम्स, बट जो नेक्स्ट सेशन आएगा हमारा, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन दैट इन द नेक्स्ट सेशन, सो सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, थोड़ा बहुत तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको आइडिया तो होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। स्ट्रीमलाइन शेप क्या होती है, स्ट्रीमलाइन शेप बेसिकली इस तरीके से जो मछली की शेप होती है, दैट इज़ स्ट्रीमलाइन शेप, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब क्या हुआ, अभी आपने देखा कि सबसे पहले लोग कैसे ट्रैवल करते थे, बाय फुट। They prefer to move by foot, ठीक है। उसके बाद फिर एनिमल्स को यूज़ करने लगे फॉर ट्रांसपोर्टेशन। एंड नाउ फाइनली वी हैव द डिस्कवरी ऑफ द व्हील की डिस्कवरी हो चुकी है भाई। सो अंटिल द बिगनिंग, सो इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन द मेड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जब व्हील का आविष्कार हुआ, व्हील की डिस्कवरी हुई, तो बहुत बड़ा चेंज आया। सो नाउ हियर्स इज क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू ऑल। वेरी फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन इज दिस, टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हु डिस्कवर्ड द व्हील। व्हील की डिस्कवरी किसने करी थी, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, हु डिस्कवर्ड द व्हील। आई एम आस्किंग यू, हु डिस्कवर
discovered wheel. So it may came in your exam. It may come in your exam. I'm not pretty sure, but basically it will enhance your knowledge. Okay, चलो तो आंसर देना जो सबसे पहले देगा. I will give the name. I will tell the name of that student in the next video. Okay, चलो आगे बढ़ो. The design of the wheel was improved over thousands of years. So पहले कोई wheel था, फिर जैसे जैसे gradual industrialization आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज आई, तो उसके बाद क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ हमारे इंडिया में, डेवलपमेंट हुआ. तो उसके बाद क्या हुआ, बेसिकली व्हील का जो स्ट्रक्चर है, व्हील को इम्प्रूव करा गया. एनिमल्स फॉर यूज टू पुल कार्ट्स दैट मूव्ड ऑन व्हील. तो एनिमल्स को यूज़ करा गया सामान को लादने के लिए, जो कि बेसिकली किस पे चलता था, पहियों पे ही चलता था. आज आप देख रहे हो, क्या देखते हो आप देख रहे हो कि आगे एनिमल होता है पर्टिकुलर, पीछे एक कार्ट होती है, उसके ऊपर एक इंसान बैठा हुआ था और सामान होता है और पहिए होते हैं. तो व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द एनिमल, द मेन वर्क ऑफ द एनिमल इज़ टू बेसिकली पुल दैट कार्ट. उस कार्ट को खींचना ही काम होता है ना बेसिकली, नीचे तो पहिए होते ही हैं. ओके, so until the beginning of the 19th century people still depend on the animal boat and ship to transport them from place to place. तो 19th सेंचुरी की शुरुआत तक सभी लोग किस पे डिपेंड थे, एनिमल्स पे, बोट पे और शिप्स पे. लेकिन जब भी स्टीम इंजन का अभी हमने देखा व्हील का इन्वेंशन हुआ, फिर जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ तो नए नए ट्रांसपोर्ट ग्रेजुअली आने लग गए. रेल रोड्स वर मेड फॉर द स्टीम इंजन. स्टीम इंजन का जब, अच्छा एक और क्वेश्चन, स्टीम इंजन को किसने डिस्कवर करा था, इट्स अ इंटरेस्टिंग, वेरी इजी. अभी आप ना आंसर दे सकते हो अगर आपको पता है तो दूसरा क्वेश्चन ये यहाँ से आ गया आपका. ठीक है, चलो आगे. ठीक है, तो जब रेल रोड्स यानी कि बेसिकली स्टीम इंजन के जब इन्वेंशन हुआ तो उसके बाद हमें पता है रेलवे का भी एक्सपेंशन होने लगा. लेटर केम ऑटोमोबाइल सच एज. फिर उसके बाद क्या हुआ, अब आपका स्टीम हो गया, व्हील आ गई, तो अब ट्रक्स, मोटर कार, बसेस आ गई, जिससे ट्रांसपोर्टेशन और ईजी हो गया हमारे लिए. ठीक है, मोटराइज बोट्स एंड शिप्स वर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर. द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एयरप्लेन्स. 1900 के पिछले मतलब कुछ सालों से क्या हुआ, 1900 के टाइम पे क्या हुआ, एयरप्लेन का भी डेवलपमेंट होने लग गया. दीज वर लेटर इम्प्रूव टू इजी कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स. ठीक है, फिर इनमें भी पैसेंजर्स और सामान जाने लगा. इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरियल, सुपरसोनिक एयरप्लेन्स एंड स्पेस क्राफ्ट आर सम ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द 20th सेंचुरी. तो ये क्या है, दीज आर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द 20th सेंचुरी. बेसिकली आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट एज कि डेवलपमेंट हुआ, कहने का मतलब है इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ. पहले कहानी शुरू हुई हमारी किससे, बाय फुट. तो अगर क्वेश्चन आए हाउ देयर इज़ अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, सो यू कैन स्टार्ट गिविंग द आंसर बाय फुट, देन बाय एनिमल, देन basically you can give the name of the person who developed the basically wheel and you can give some example, then finally steam engine and airplane. तो आप पूरी कहानी इस तरीके से चल सकते हो. ठीक है, चलो अगला आता है. ओके, तो यहाँ पे कुछ है नहीं. फिगर 7.1 शोज सम ऑफ द. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क. तो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, हम मेज़रमेंट सीखेंगे. अब हम सीखेंगे मेज़रमेंट, किस तरीके से हम नाप सकते हैं कोई चीज़. सो हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड. तो लोगों को किस तरीके से पता चलेगा कि आप कितना दूर चले हो. आपको ये कैसे, अच्छा एक ये यहाँ से जो पैराग्राफ है उसमें क्या कहानी रखी है अभी मैं आपको समझा देती हूँ, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. देखो आपकी गली है, ये साफ सीधी बात यहाँ ये बोल रखी है कि आपकी गली है, आपकी गली के बाहर ही क्या है, एक दुकान है. ठीक है, परचूनी की दुकान है, मतलब स्टेशनरी हम कह सकते हैं, नॉर्मल शॉप है जहाँ पे राशन पानी सब मिल जाएगा, आपको खाने पीने का सामान सब मिल जाएगा. आपका घर है यहाँ पे. ठीक है, अब आपको लाना है क्या, अब आपको कुछ सामान लेना है विच इज़ लिस्टेड इन दिस लिस्ट. ठीक है, इस लिस्ट में कुछ सामान लिख रहा है जो आपको इस पर्टिकुलर शॉप पे मिल जाएगा. आपको पार्ले जी गुड्डे लेके आने हैं, क्रैक जैक लेके आना है, आपको टाइड लेके आना है, आपको पर्टिकुलर घड़ी मतलब कोई भी सामान लेके आना है, आपको कोई भी साबुन लेके आना है. यू हैव टू ब्रॉट अ विम बार लेके आना है, आपको बूरा वगैरह ये सब सामान लेके आना है. बहुत सारे आइटम इस लिस्ट में लिस्टेड हैं एंड यू हैव टू ब्रॉट दीज आइटम्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर शॉप. तो अब मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि आपकी गली के बाहर ही एक दुकान है, तो आप इस दुकान तक कैसे जाओगे. यू हैव 3 ऑप्शंस.
Very first is by rickshaw. Second option is by by bike. And third option is basically by ट्रेन. इन तीन ऑप्शन में आप क्या प्रेफर करोगे यहाँ तक जाने के लिए? तो एक अक्लमंद इंसान जो होगा वो ये सोचेगा यार 3 ऑप्शन है, नहीं में से कुछ चूज़ करना होगा, तो आई विल प्रेफर बाय बाइक. ठीक है, तो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इन तीनों में से आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना चाहिए. आपके घर के बाहर ही दुकान है, गली के बाहर ही दुकान है, तो यू कैन गो बाय फुट टू ट्रैवल और टू बॉट दैट आइटम. तो यहाँ पे आपको कैसे पता चला कि मुझे इससे नहीं जाना, मुझे इससे नहीं जाना, ये मेरे घर के पास ही दुकान है तो मैं पैदल जा सकता हूँ. तो ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि बिकॉज यू नो द डिस्टेंस. आपको डिस्टेंस पता है कि ये मेरे घर से ये दुकान बस इतना सा ही डिस्टेंस है, तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. आई कैन ट्रैवल बाय फुट दियर. अब मान लो कि यहीं आपका घर है और यू हैव टू गो टू लेट्स से यू हैव टू गो टू योर बुआ जी का घर, विच इज़ बेसिकली एग्जैक्टली अ लॉट ऑफ, मतलब वो जो कि आपके घर से बहुत ही ज़्यादा दूर है. इस तरीके से डिस्टेंस है ये. मान लो इतना, ये कुछ आपका यहाँ सेंटर में आपकी बुआ जी का घर है. ठीक है, इसके अंदर भी अब भूल भुलैया सी है, फिर आपका बुआ जी का घर है. तो आप क्या करोगे? आप यू हैव टू ट्रैवल दिस अ होल डिस्टेंस. तो आप सोचोगे कि घर तो बहुत दूर है, पैदल जाना तो ठीक नहीं होगा, तो आई कैन प्रिफर टू go there by car or by bus because that particular house is in your city. अब मान लो यू हैव टू गो आउट ऑफ द सिटी. अब आपको सिटी से बाहर जाना है, तो क्या करोगे आप? तो सिटी से बाहर जाने के लिए तो यू हैव टू गो बाय बस, यू हैव टू गो बाय ट्रेन. तो कैसे आप एस्टिमेट कर पा रहे हो कि मुझे कब कौन सी कंडीशन में कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है? बिकॉज यू नो द डिस्टेंस बिटवीन योर हाउस एंड योर डेस्टिनेशन. येस, the terminology which I'm using, you have to basically remember these terminologies while giving the answer in your exam. Okay, so देखो कैसे यहाँ पे यही बात बोली है कि जैसे मतलब अगर आपको अपने स्कूल जाना है जो कि आपके बिल्कुल घर के पास में है, तो आप क्या प्रेफर करोगे? रिक्शा वगैरह वगैरह, आप पैदल जा सकते हो, है ना. जैसे आपको कोई घर के पास ही दुकान से सामान लेने जाना है, तो कैसे जाओगे आप? इन सब के आंसर कैसे दोगे जब आपको डिस्टेंस पता होगा? तो चलो अब समझते हैं व्हाट इज़ एग्जैक्टली डिस्टेंस. किस तरीके से यहाँ से पढ़ेंगे आप. इन पहेली एंड बूझोज क्लासरूम देर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाय 2 स्टूडेंट्स. तो एक देखो क्या है, पहेली और बूझो की क्लासरूम में एक बहुत बड़ी डेस्क है जिस पर 2-3 स्टूडेंट्स आराम से बैठ सकते हैं, जिस पर्टिकुलर डेस्क को 2 स्टूडेंट्स को शेयर करना है. पहेली और बूझो वो बच्चे हैं जिनको डेस्क को शेयर करना है, लेकिन फ्रिक्वेंटली ये जो डेस्क है इस पर ऐसा हो जाता है कि कभी बूझो ज़्यादा यूज़ कर लेता है, कभी पहेली ज़्यादा यूज़ कर लेती है. तो फिर क्या होता है, उनके टीचर उन्हें सजेशन देती हैं कि तुम इस पर्टिकुलर डेस्क को 2-3 मतलब इक्वल लेंथ में डिवाइड कर लो. इक्वल लेंथ में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि जैसे ये पर्टिकुलर डेस्क है, इसको इस तरीके से डिवाइड करो कि जितना पार्ट बूझो के पास आए उतना पार्ट तुम्हारे पास आए, यानी कि तुम दोनों इक्वल यूज़ कर सको. पहेली और बूझो को गिल्ली डंडा खेलना बहुत पसंद है अपने दोस्तों के साथ. तो बूझो क्या लेके आता है? बूझो गिल्ली और डंडा का सेट लेके आता है उस पर्टिकुलर डेस्क की लेंथ को मेज़र करने के लिए और उसको डिवाइड करने के लिए. हियर इज़ हाउ दे ट्राई टू. यहाँ पे उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उन्होंने कोशिश करी है पर्टिकुलर डेस्क की लेंथ को मेज़र करने के लिए. द डेस्क सीम टू बी हैविंग अ लेंथ इक्वल टू 2 डंडा. उन्होंने क्या बताया? अब यहाँ से समझना इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ. समझने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा ऑब्वियस सी बात है, पर समझ लेना. ठीक है, देखो क्या है. द डेस्क सीम टू बी. तो कहानी ऐसे हुई कि भाई उनकी क्लास में एक मेज़ थी, उसको उनको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था. टीचर ने बोला कि तुम इसकी लेंथ को मेज़र कर लो तो शायद तुम्हारा काम बन जाए. तो फिर गिल्ली डंडा वो लेके आते हैं, उससे मेज़र करेंगे. कैसे करेंगे देखो, समझो. द डेस्क सीम टू बी हैविंग अ लेंथ इक्वल टू 2 डंडा लेंथ एंड 2 लेंथ ऑफ द गिल्ली. तो क्या बोल रहे हैं कि जो डेस्क है उसकी लेंथ किसके बराबर है? मतलब 2 डंडे की लेंथ और 2 गिल्लियों की लेंथ के बराबर की जो हमारी डेस्क है. ड्राइंग अ लाइन इन द मिडल ऑफ द डेस्क लीव्स ईच ऑफ देम हैप्पी विद द हाफ ऑफ द डेस्क इक्वल टू डंडा एंड अ गिल्ली इन द लेंथ. तो क्या बोला उन्होंने क्या करा? बीच में एक लाइन ड्रॉ करी, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी और उन्होंने इस तरीके से ड्रॉ करी कि एक डंडा आ गया और एक गिल्ली आ गई. दूसरे वाले पार्ट में भी एक गिल्ली आ गई, एक डंडा आ गया. वो बहुत ही ज़्यादा खुश है कि अब हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. कुछ दिनों बाद जो उन्होंने लाइन मार्क करी थी वो पुछ गई, गायब हो गई. मतलब कपड़ा मरेगा तो गायब ही हो जाएगी, है ना. बूझो नाउ हैज़ अ न्यू सेट ऑफ गिल्ली डंडा. बूझो के पास नया सेट है गिल्ली डंडा का, उसने पुराना खो दिया, है ना.
सो हियर इज़ हाउ द लेंथ ऑफ द डेस्क। अब क्या हुआ, अब वो नया लेंथ लेके आए, नया गिल्ली डंडा लेके आए, तो ऑब्वियस सी बात है पुराने गिल्ली डंडे की और नए गिल्ली डंडे की जो लेंथ है वो डिफरेंट होगी। तो यानी कि अब जब वो यूज़ करेगा तो कुछ डिफरेंस आ जाएगा, है ना। तो कुछ डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि कहने का मतलब ये है जो उसने गिल्ली डंडे का मेथड यूज़ करा था, इट विल नॉट हेल्प हिम एट ऑल, क्योंकि पहले जो उसकी लेंथ थी अब उसमें चेंज आएगा, क्योंकि अब उसके पास जो नया डंडा है उससे काम बिगड़ जाएगा। क्या पता उसकी लेंथ पुराने से कम हो, ज़्यादा हो, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरीके से लेंथ में डिफरेंस आ रहा है। चलो, हेलो, नाउ व्हेन मेजर्ड विद द न्यू सेट ऑफ गिल्ली डंडा द डेस्क लेंथ सीम्स टू बी अबाउट 2 डंडा लेंथ 1 गिल्ली लेंथ। तो अब क्या हुआ, जब अब उसने नए गिल्ली डंडा से उस पर्टिकुलर डेस्क को मेज़र करा, तो पहले क्या था, पहले था कि एक साइड में एक गिल्ली की लेंथ है और एक डंडे की लेंथ है, दूसरे साइड पे भी एक गिल्ली है एक डंडा। अब क्या हुआ, अब जब वो लेके आया तो एक साइड पर 2 डंडा 1 गिल्ली, 2 डंडा 1 गिल्ली, ये चीज़ आ रही है, यानी कि डंडे जो हैं वो छोटे हैं। दिस इज़ लेस देन 1 गिल्ली लेंथ, यानी कि मतलब यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ आ गया। वॉट वुड यू सजेस्ट पहली एंड भूजो टू डू मेज़र द। तब आप क्या सजेस्ट करोगे पहली और भूजो को डेस्क की लेंथ को मेज़र करने के लिए। कैन दे यूज़ अ क्रिकेट विकेट एंड बेल्स टू मेज़र द लेंथ, डू यू थिंक दैट माइट क्रिएट अ सिमिलर प्रॉब्लम। तो देखो, क्या आप ये बोलोगे कि तू बैट यूज़ कर ले, तो डंडा यूज़ कर ले, तो स्केल यूज़ कर ले, क्या आपको नहीं लगता कि ये चीज़ भी दिक्कत क्रिएट कर सकती है। सो वन थिंग दे कुड डू इज़ टू टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड मार्क 2 पॉइंट ऑन इट। तो एक चीज़ क्या वो कर सकते हैं, वो एक चीज़ कर सकते हैं कि वो एक धागा लें, ठीक है, और उस पर 2 पॉइंट मार्क करें। दिस विल बी अ स्ट्रिंग लेंथ। ये क्या होगी, एक स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर होगी। तो आप हर बार धागा, तो हमेशा धागे की लेंथ तो सेम रहेगी ना, भले ही धागा कितना ही बड़ा हो, लेकिन एक पर्टिकुलर पोर्शन तो उसका सेम रहेगा ना। सो दे कैन मेज़र द विड्थ ऑफ द डेस्क इन स्ट्रिंग लेंथ। तो वो क्या कर सकते हैं, जो डेस्क की चौड़ाई है उसे स्ट्रिंग लेंथ के टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं। हाउ कैन दे यूज़ द स्ट्रिंग टू मेज़र डिस्टेंस लेस देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो वो किस तरीके से मतलब मेज़र करेंगे, हाउ कैन दे यूज़ द स्ट्रिंग, वो किस तरीके से धागे को यूज़ कर सकते हैं टू मेज़र द डिस्टेंसेस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के से कम की डिस्टेंसेस को अगर उन्हें मेज़र करना है, कि मान लो धागे की जितनी लेंथ है उससे भी कम उन्हें यूज़ करना है, मेज़र करना है, तो किस तरीके से मेज़र करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। सो दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग। अब देखो उस केस में आई नो कि अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, इन सिंपल टर्म्स में दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। तो स्टार्टिंग में कहानी कहाँ से शुरू हुई, उनको मेज़र करना था, तो वो लेके आया गिल्ली डंडा, उसके पास जो गिल्ली डंडे थे। तो स्टार्टिंग में जो उसने देखा, तो एक पार्ट में क्या करा उसने, एक गिल्ली और एक डंडे के बराबर की लेंथ है, दूसरे पार्ट में भी एक गिल्ली और एक डंडा, यानी कि दोनों के पास इक्वल पार्ट आ गए। अब क्या हुआ, काम वाली जो वहाँ पे थी, जिन्होंने उस पर्टिकुलर जो उस स्कूल में वाइपिंग वगैरह कर रही थी, तो उन्होंने उस मतलब लेंथ को मिटा दिया, मतलब वो क्या करें, पोंछा लगाएंगे तो गायब ही हो जाएगी, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके बाद ये चीज़ हुई कि अब वापस से वही प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई। तो इस बार जो वो उसके पास गिल्ली डंडे थे वो नए गिल्ली डंडे थे, तो लेंथ में वेरिएशन आ गया। इस बार 2 गिल्ली और 2 डंडा और 1 गिल्ली के बराबर लेंथ आ रही थी, तो इससे दिक्कत होने लग गई। तो एक बेस्ट तरीका क्या है, स्ट्रिंग को मेज़र करना। तो आपकी जो धागा है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, लॉनों की लेंथ को बराबर कर सकते हो। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये हो सकती है कि मान लो आपका धागा 2 मीटर का है और 2 मीटर से कम की लेंथ को आपको मेज़र करना है, तो आप क्या करोगे, तो उस केस में यू कैन फोल्ड योर स्ट्रिंग, आप उस स्ट्रिंग को फोल्ड कर सकते हो, तो आप मेज़र कर पाओगे। सो हाउ कैन दे यूज़ अ स्ट्रिंग टू मेज़र डिस्टेंसेस, ठीक है। सो अब आगे एंड मार्क इट इनटू 1/2 1/4, इस तरीके से आप मार्क कर सकते हो, बिकॉज यू आर जस्ट फोल्डिंग इट। Now perhaps Paheli and Bhujo can measure the exact length of the desk using the string. You would say that they should use the scale in their geometry box and solve their problem. Yes of course. अब आप ये भी सोच रहे होगे कि यार इतना झंझट कर रहे हैं, अपने ज्योमेट्री बॉक्स से स्केल निकालते हैं, अब तक तो सारा काम हो जाता, क्योंकि 25 सेंटीमीटर का जो स्केल है वो तो सबका इक्वल होता है। तो ये भी तरीका एकदम सही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे तरीके हो सकते हैं अगर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम से टैकल करना है तो। सो बूजो हैज़ बीन रीडिंग अबाउट द वे पीपल यूज टू मेज़र। तो बूजो इन सब के बारे में पढ़ रहा है कि किस तरीके से लोग डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए कौन कौन से तरीके यूज़ कर सकते हैं। देर आर सो मैनी ओकेजन्स व्हेन वी सम कम अक्रॉस अ नीड टू मेज़र लेंथ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, समस्याएं ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं जब हमें डिस्टेंसेस को मेज़र करना पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें टेलर की, सो द टेलर नीड्स टू मेज़र द लेंथ ऑफ द क्लॉथ। कपड़े की लेंथ को उसे मेज़र करना पड़ता है टू नो इफ़ इट इज़ इनफ टू स्टिच करता।
ये जानने के लिए कि मतलब जब आप टेलर के पास जाते हो तो वो आपका नाप लेता है नहीं लेता, कुर्ते को उसी हिसाब से बनाता है ना वो। कारपेंटर भी क्या करता है, कारपेंटर भी जिस पर्टिकुलर कपबर्ड को उसे बनाना है उसकी हाइट और डिस्टेंस उसको मेज़र करेगा, हाइट को और विड्थ को मेज़र करेगा। फार्मर भी क्या करता है, खेती के टाइम पे अपने पर्टिकुलर लैंड के एरिया को मेज़र करता है, उसी के हिसाब से उसे क्या देना पड़ता है, लैंड मतलब रेंट देना पड़ता है ना लैंड लॉर्ड को, यानी कि ज़मींदारों को। आप पढ़ोगे इसे अपनी हिस्ट्री में, ठीक है। सो हाउ मच सीड कैन सो, और ये जानने के लिए कि उस पर्टिकुलर लेंथ में वो कितने बीज बो सकता है, ठीक है। सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर, मान लो कभी आपसे कोई केस ऐसा पड़ जाए, कोई आपसे पूछे कि तुम्हारी हाइट कितनी लंबी है, तो आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेज़र योर हाइट, आपको अपनी हाइट को मेज़र करना पड़ेगा, कितना लंबा रूम है, कितनी लंबी डेस्क है। तो ये सारी चीज़ों से टैकल करने के लिए यू नीड टू नो अबाउट द डिस्टेंस को मेज़र करना आना चाहिए। सो इन सारी क्वेश्चंस कि हाउ लॉन्ग इज़ द रूम, हाउ इट वाइड इज़ द डेस्क, हाउ फार इज़ इट फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, हाउ फार अवे इज़ द मून फ्रॉम द अर्थ, सारे क्वेश्चंस में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ बेसिकली डिस्टेंस, कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कितनी दूरी है, वो है हमारा डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्टेंस को मेजर करना हमें आ गया। द टू प्लेसेस मे बी क्लोज इनफ, दो चीज़ें, ऐसा नहीं कि हमेशा दो चीज़ें दूर ही होंगी, पास भी तो हो सकती हैं, जैसे भी हमने घर और दुकान वाला एग्जांपल देखा था। लाइक द टू एंड ऑफ अ टेबल, जैसे एक पर्टिकुलर टेबल है तो उसके दो कोने पास होते हैं, है ना। ऐसे ही लाइक जम्मू और कन्याकुमारी, बहुत सारी जगह हैं जो आपस में पास पास होती हैं, एंड यू कैन बेसिकली मेजर द डिस्टेंस। लेट अस डू अ फ्यू मेजरमेंट टू शो टू सी वॉट एग्जैक्टली वी नीड टू डू व्हेन वी मेजर दैट डिस्टेंस। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ये समझने के लिए कि किस तरीके से डिस्टेंस को एग्जैक्टली मेजर किया जा सकता है। So students, we have covered a lot in this particular video, so we will discuss the remaining of the chapter in the next video, next part of this chapter. So I hope that you have enjoyed this video and understood well from this particular chapter. So see students, don't get panic about your result and don't get panic about your annual result. Basically start living in present and enjoy your present. So if you enjoy this video, so do hit the subscribe button and also give me a bell, basically like button, also hit the like button and write your views for this video in the comment section, and also give the answer of the two questions which I have listed you in this particular video. So till then, take care and bye bye.